Welcome back. Today we start with our 10th chapter, and that is related to your organs of government. Now, organs of government you must have already done, and शायद याद भी होगा, that is in 8th standard. So organs, that is a parts of government. मतलब कि जैसे organs of body होते हैं, and each and every organ of our body, whether it is the smallest or the largest one, but each and every part, I would say each and every organ of our body is equally important. You can't say that this particular organ of my body is less important, इसके बिना तो थोड़े दिन चल जाएगा. It doesn't happen that way. Similarly, government के भी 3 organs हैं, and each organ is equally important. That is law makers, जिसको हम कहते हैं legislative. Executive मतलब कि जो laws को execute करवाते हैं. Judiciary, that is your high court, supreme court, district court, various courts of the country. And what is the main objective of our country? तो ये भी learn करना है. Main objective, learn it first, to maintain law and order. Second is to achieve welfare, that is to see that the welfare of the people is maintained, they are provided the necessities and proper judgment. And third is to protect the freedom of the country and freedom of the people as well. And for country's progress, what do we need? Most important is unity we need and cooperation between these 3 organs. तो अगर ये 3 organ unitedly काम करेंगे, right, and cooperatively, I would say, and again unity of the country also is a big matter over here, which we have to consider. So unity plus cooperation is very important between these 3 organs. Now unity, that is to be effective and efficient administration of the government. तो सबसे पहले the administration of the government should be very effective, it should be very efficient for the development of the country. And was legislative first of all. जैसे 3 organs हमने देखे, legislative, executive and judiciary. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा आता है legislative, जो laws frame करते हैं. एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं ये लॉस, मतलब कि जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. जुडिशरी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं कंट्री में, एंड बाय पनिशिंग दोज हु वायलेट्स द लॉ. सो स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, वायलेट्स, दैट इज हु ब्रेक्स द लॉ, राइट, तो उनको पनिश किया जाता है. नाउ लेजिस्लेचर. अब व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन लेजिस्लेचर. So first of all, parliament at the center and legislative assemblies at the state level. Now let us make it very clear over here. जैसे parliament, तो parliament is always, I would say, that is Lok Sabha and I would say Rajya Sabha, right? तो ये जो दोनों हैं equal to, we call it parliament, and that is at the country level, that is central level. लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट लेवल. अब हर एक स्टेट लेवल पे भी 2 हाउस होंगे, राइट, लेकिन उसे भी अगर लोकसभा राज्यसभा कहा तो देयर विल बी कंफ्यूजन. सो व्हाट डू वी कॉल देम एज, लोकसभा को हम क्या कहेंगे, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यसभा को हम कहेंगे, राइट, वी विल कॉल इट लेजिस्लेटिव असेंबली. सॉरी फॉर दिस. एंड सो दैट इज योर असेंबली. एंड राज्यसभा को हम कहेंगे एट स्टेट लेवल, वी कॉल इट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड राज्यसभा. लेकिन हर एक स्टेट में असेंबली होना ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि काउंसिल होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र हैज़ legislative assembly and legislative council, but Gujarat has only assembly but no council, right? Then we move on to executive. Executive, that is, you can say the one who are making the laws execute, implement.
फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, फिर आते हैं पीएम दैट्स प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर होंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर. दैट इज एट अगेन यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल. उसी तरह से स्टेट लेवल पे हम क्या लेंगे, तो प्रेसिडेंट की जगह पे होंगे गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कहलाएंगे, और पीएम की जगह पे स्टेट लेवल पे होंगे सीएम. If you remember this much, your answers will become very easy as we move ahead because the answers will be very much in detail. Chapter is lengthy. तो ये पैटर्न तुम्हें दी गई है यहाँ पे ताकि तुम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको. When you are revising on your own this particular chapter, this pattern will make it very easy for you to learn your answers properly and in an easy manner. तो वंस अगेन लेट्स मूव ऑन टू लेजिस्लेचर. तो दो लेवल हैं, वन इज सेंट्रल लेवल एंड द अदर इज स्टेट लेवल. अब लेट अस टेक इट दिस वे, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. अब सेंट्रल लेवल पे होंगे लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे भी लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेवल पे, बट देन दिस विल बी कंफ्यूजन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, कंट्री लेवल पे हम उसे कहेंगे लोकसभा राज्यसभा, उसी को स्टेट लेवल पे कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब पूरे कंट्री में तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, दैट इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस. बट स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट के पास ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाउस हो. हाँ, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि दोनों हाउस में से assembly is very compulsory for each state to have, right? legislative assembly जिसको हम कहते हैं हाई लेवल पे लोकसभा, लेकिन राज्यसभा जिसे हम स्टेट लेवल पे काउंसिल कहते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि हर एक स्टेट का हो. तो आई गिव यू एग्जाम्पल, महाराष्ट्र हैज़ बोथ असेंबली काउंसिल, गुजरात हैज़ ओनली असेंबली जो कंपलसरी है. फिर हम आते हैं, तो ये हुए लॉ मेकर्स. अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ, मतलब कि जो लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं. तो देयर इज प्रेसिडेंट कंट्री लेवल, फिर पीएम और उनका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर. ये हुआ सेंट्रल लेवल. वैसे हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह पे वही काम किसका होगा, गवर्नर. पीएम की जगह पे सीएम. कैबिनेट मिनिस्टर इज cabinet ministers, right? That is, we call it council of ministers. Third, we move on to is judiciary. So different levels of court, supreme court, apex court. Then we come down state level पे हर एक state high court. लेकिन once again ज़रूरी नहीं है कि हर एक state का एक court हो. जैसे 7 sisters, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश etc. उनका एक कोर्ट है. 7 सिस्टर्स के बीच में एक कोर्ट. पंजाब हरियाणा हैज़ 1 कोर्ट. तो अकॉर्डिंगली बट स्टेट का कोर्ट होगा तो उसको हम कहेंगे हाई कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट वाइज वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन देयर आर स्पेशल कोर्ट लाइक लोक अदालत एंड ऑल, राइट, फॉर स्पीडी जजमेंट. क्लियर? नाउ जुडिशरी इज सेपरेट, मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ ये नहीं है. व्हेन इट ऑपरेट्स, व्हेन इट इज डूइंग इट्स वर्क, इट इज सेपरेट. रीजन, अगर जुडिशरी इनके साथ काम कर ले तो होगा ये दैट इफ एट ऑल, इफ देर इज एनी केस अगेंस्ट एनी ऑफ द member of group of minister or cabinet minister, what we call, it may happen कि judiciary may get bribed or it may be brought under fear by higher officials. तो वो अपनी 100% ऑनेस्ट जजमेंट नहीं दे पाएंगे, तो उनको सेपरेट रखा गया है. इट इज़ इंडिपेंडेंट विदाउट एनी फियर और एनी अदर रॉन्ग इंटेंशन. इट गिव्स इज जजमेंट and it is organized whole, that is from lowest court to supreme court. It is all, we say all the courts are interconnected. Then India is said to be union of states. No state, that is जो हम कहते हैं कि
इंडिया बहुत सारे स्टेट का एक यूनियन है और तुम ये नहीं कहोगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट 100% मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या सॉवरेन है. इंडिपेंडेंट तो है, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो नेचुरली हमारे कंट्री के सारे स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन है. सॉवरेन मीन्स नो अदर कंट्री इज अलाउड टू इंटरफियर इन आ मैटर विदाउट आ परमिशन, जो बहुत सालों पहले हो चुका था. एंड वी हैड टू बी अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर लॉन्ग ईयर्स, राइट. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं. बट दैट इज इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, ये सब है. बट हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक स्टेट हमारी कंट्री का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या सॉवरेन नहीं है. मीन्स व्हाट, कि जैसे ही हमने वर्ड यूज़ किया यूनियन, मतलब जैसे ही ये सारे स्टेट इंडिया के रूफ के अंडर आ गए, ये बहुत सारे स्टेट्स, इट कम्स अंडर द रूफ ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंडर, राइट. यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर है ये सारे स्टेट्स. व्हाट विल हैपन नाउ, नॉट अ सिंगल स्टेट कैन मूव बैक कि मुझे अपनी अलग एक कंट्री बनानी है. दिस इज नॉट अलाउड. पावर्स आर डिवाइडेड between the lawmakers and executors, and both are dependent on each other, means interdependent. Clear? But judiciary is separate and independent. Legislative and executives are interdependent, मतलब वो independent नहीं है, they depend on each other. Law बनाएंगे, ये execute करेंगे, और यहाँ पे ये independent है जो अपने हिसाब से प्योरली ऑनेस्ट जजमेंट देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ 3 ऑर्गन्स आर डिफरेंट. मतलब जुडिशरी के फंक्शन अलग हैं, उनकी एक्टिविटीज अलग होगी, लॉ मेकर्स की अलग होगी, और एग्जीक्यूटिव जो होंगे उनके फंक्शन अलग होंगे. ऑल फंक्शन ऑफ कोर्स रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज. अब जो भी फंक्शन है ये 3 ग्रुप के, 3 ऑर्गन्स के, हर एक फंक्शन के लिए एक्सपर्टाइज बहुत ही ज़रूरी है. ईच ऑर्गन इज एडमिनिस्टर्ड, दैट इज लुक्ड आफ्टर, टेकन केयर ऑफ, इज केप्ट अ वॉच ऑन बाय डिफरेंट पीपल. और हर एक ये लोगों का अपना खुद का अलग फंक्शन होगा. जो एक्सपर्ट होंगे वो वहीं पे उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे. एंड डिवीजन ऑफ पावर, क्यों पावर को डिवाइड किया गया है अलग अलग लोगों में, अलग अलग हेड के अंडर, ताकि मिसयूज ना हो पावर का, राइट. नेक्स्ट वी कम ऑन टू लेजिस्लेचर. एज यहाँ पे दिया है, दिस यू कैन लर्न एंड यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस, या ये अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो. ये बहुत ही इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. सो लेट्स मूव ऑन. लेजिस्लेचर. इंडिया इज, अभी मैंने बताया, इज अ रिपब्लिक कंट्री, इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, रिप्रेजेंटेटिव्स, SEN. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सीन वेयर? पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल and in assembly at state level. Now who are representative? अब जब elections होते हैं, right, people go and give their vote honestly, and it so happens that अब election के काफ़ी टाइम पहले, जैसे ले लो, जैसे आज कोई इलेक्शन में खड़ा रहा, तुम्हें पता भी नहीं कि ये कौन है, ठीक है, नाम नहीं पता, कभी सुना ही नहीं, ना कभी उसके बारे में कभी हमारे एरिया में आते हुए देखा है, या कोई उसने काम किया हो कुछ अच्छा हमारे एरिया के लिए. वी हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रॉम आवर एरिया फॉर इलेक्शन. तो नेचुरली यू आर नॉट गोइंग टू वोट. तो जो लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं, उनका ये पॉलिटिकल लाइफ उनकी बहुत साल पहले से स्टार्ट हो जाती है. They are actually involved in lots of social work, and they are involved in the betterment of the society.
कई लोग जो हमारे एरिया से खड़े रह रहे हैं, जो खड़े होते हैं फॉर इलेक्शन, दे हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क सिंस लास्ट मेनी ईयर्स फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ आवर एरिया, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर रीजन. अब जाके वो उनको जो सीट मिलती है, दे आर नॉमिनेटेड, मतलब पहले नॉमिनेशन के पहले तो वे खड़े होते हैं एंड वी कम टू नो अबाउट, एंड बहुत सारा प्रोपागेंडा होता है फिर तो डिफरेंट मीडियम से, लाइक न्यूज़पेपर्स, टीवी, रिक्शा, एंड रिक्शा में निकलते हैं वो प्रचार करने. नाउ यू नो दैट यस, ये तो हमारे एरिया का आदमी है, बिकॉज ही इज़ अ नोन पर्सन, ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ वर्क सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स and he had been in personal contact with so many people in our area. अब जाके लोग वोट करेंगे उसे, वो जीतते हैं और हमारी ओर से वो जाके बैठेंगे. अगर स्टेट लेवल पे है तो असेंबली में, कंट्री लेवल पे है तो पार्लियामेंट में. तो ये हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनको तो हमने पिकअप किया, जिताया डायरेक्टली, दे विल गो एंड सिट ओवर इन असेंबली. अब हमारे एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, व्हेन वी let them know, once again we don't give them a call कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, is through again newspapers and various other mass medias. They come to know about our problems that हम जो पेश करते हैं हमारे प्रॉब्लम थ्रू मास मीडिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सब पता रहता है. उनके अंदर भी कई लोग हैं जो हमारे एरिया में दे आर इन टच विथ कॉमन पीपल, दे कम टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दे सॉल्व द प्रॉब्लम by sitting there at the assembly या पार्लियामेंट. तो ये करोड़ों की जनता हमारी जाके पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं बैठेगी. हमारी ओर से ये लोग बैठे हुए हैं who are working for us, who are there to develop our country, who are there to bring about a better lifestyle for the people of our country, and who are there to solve so many problems of the people of our region, of our state, of our country on a whole. तो ये हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, राइट. अब पार्लियामेंट हम कहेंगे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इज पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट में कौन होंगे? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा विच इज कॉल्ड द अपर हाउस, लोकसभा विच इज कॉल्ड द लोअर हाउस, राइट. लेकिन ज़्यादा जो पावर है वो होगा लोकसभा में, दो इट इज कॉल्ड लोअर हाउस, लेकिन पावर्स उनके पास ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ लोगों की सभा. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे हैं, राइट. एंड इट हैज़ देयर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ यूनिकैमरल मतलब वन हाउस, बाइकैमरल मतलब टू हाउसेस. नाउ एट सेंट्रल लेवल, CEN, एट सेंट्रल लेवल मतलब कंट्री लेवल पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस. पावर ज़्यादा होगा लोकसभा के पास. उसी तरह से स्टेट लेवल में भी मैंने बताया टू हाउसेस हर एक स्टेट में, राइट. असेंबली एंड काउंसिल. असेंबली को कहेंगे हम लोकसभा एट हायर लेवल, काउंसिल को हम कहेंगे राज्यसभा एट हायर लेवल, दैट इज सेंट्रल लेवल. Most of the state, as I told you, has assembly, right? Some states have both. तो कंपलसरी क्या हुआ? असेंबली. और थोड़े बहुत स्टेट के पास दो हैं, लाइक महाराष्ट्र हैज़ बोथ असेंबली एंड काउंसिल, यूपी हैज़ बोथ. एंड लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल, दैट इज लोकसभा, लोअर हाउस, एंड मेंबर्स यहाँ पे कौन होंगे? like representatives of common people who are directly elected. Total 545 members, और दो select होते हैं by president from Anglo-Indian community. Everything is provided over here. Same, but it is in I would say pressy form, which makes it once again I would say very easy for you for learning your answers and understanding the chapters. So once again, central level two houses, upper house, lower house, Lok Sabha, Rajya Sabha. हर एक स्टेट लेवल पे असेंबली, काउंसिल, दैट इज अगेन लाइक सेंट्रल लेवल का योर लोअर हाउस एंड अपर हाउस. मोस्ट ऑफ द स्टेट सबके पास असेंबली तो होगी.
थोड़े बहुत स्टेट के पास दोनों हैं, लाइक महाराष्ट्र, यूपी। फिर सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, जैसे हमने बताया, लोअर हाउस लोकसभा, जिसमें होंगे मेंबर्स, और वो मेंबर्स होंगे हमारे पिकअप किए हुए, जो हमने इलेक्ट किए हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव, हमारी ओर से वहाँ पे जाके बैठते हैं। टोटल 545 मेंबर्स होंगे लोकसभा में, और 2 को सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नाउ वी कम ऑन टू प्रेसिडेंट. President also is a part of parliament. Listen carefully. It will be repeated, but listen it very, very carefully. First meeting of parliament, right? तो first of all, president parliament के एक part है. First meeting of parliament and joint session, मतलब meeting of parliament. तो ये कौन address करेगा? President. Apart from this, president does not attend any meeting. So rectification over here, does not attend any meeting, right? And यहाँ पे see, you can see it over here. President is a part of parliament. He will address the first meeting. Again, president will address the joint meeting in the parliament. Beside these two occasions, learn it. President will never attend the parliament. Clear? So, small rectification, does not attend. President power. तो president के पास power कौन सा है? It calls the two houses, that is summons. Two houses, that is लोकसभा राज्यसभा को कोई एक particular important matter पे अगर बुलाना है तो it will pass the order, it will call the two houses. फिर अगर मीटिंग स्टॉप करनी है तो भी उनके पावर्स हैं प्रेसिडेंट के. पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है तब भी वो पावर प्रेसिडेंट के ही रहेंगे. अब बिल मतलब क्या? दैट इज बिल इज अ सजेशन, अ प्रपोजल, एक सुझाव देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक सुझाव देते हो दैट मैम नेक्स्ट वीक प्लीज़, और या 2 वीक या 3 वीक के बाद एंड ऑफ अगस्त में हमारी स्कूल की एग्ज़ाम्स हैं, प्लीज़ 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 और टेस्ट मत रखना या लेक्चर मत रखना, तब इट्स बिकम्स वेरी हेक्टिक, केओटिक. सो प्लीज़ मैम. अब ये प्लीज़ वाला तो ठीक है, तुम बोलोगे पार्लियामेंट में प्लीज़ एंड ऑल नहीं होता, बट सपोज जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा ये जो सुझाव है जो तुमने हम तक पहुंचाया, राइट, तो वो क्या हुआ? बिल. ठीक है, लिख के दे दिया. दैट बिल वी विल गो थ्रू. अब ये हमारी मीटिंग होगी भाई, क्या करना है. अब मीटिंग मतलब 4-5 घंटे की नहीं, 10-20 मिनट्स. वी विल डिस्कस दैट एक्चुअली डज दिस चिल्ड्रन नीड इट और नो. व्हाट इज एक्चुअली द मैटर. स्कूल में कब, अलग अलग स्कूल की कब एग्जाम्स होगी, कितने मार्क्स की है. इफ इट इज 20-25 मार्क्स, आई डोंट थिंक सो यू नीड हॉलीडे इन लेक्चर्स तो कंटिन्यू ही रहेंगे. हाँ, समटाइम वी कंसिडर एंड वी मे नॉट take test at that time, but lecture continues. Clear? हाँ, 100 मार्क की एग्जाम होगी, then we'll have to consider everything in detail. तो ये तुमने जो एक बिल पास किया, नॉट पास किया, तुमने अभी खाली एक सुझाव रखा है, तो वो डिस्कस होगा पार्लियामेंट में. फिर फाइनली प्रेसिडेंट अगर साइन करेंगे तो वो बनेगा एक्ट. तो हम क्या कहेंगे? ओके फाइन, चलो छुट्टी, नो लेक्चर. बट द मोमेंट it is not signed by the president, it is not accepted, तो हम क्या कहेंगे? कैंसिल. ये बिल पास नहीं होगा, मतलब कि लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे. सो लोकसभा नॉट परमानेंट हाउस. नॉट परमानेंट मतलब हर 5 साल के बाद नए मेंबर्स आएंगे उसमें. ये 5-5 साल के बाद इलेक्शन होगा, न्यू मेंबर्स विल टेक एंट्री. तो लोकसभा इज नॉट परमानेंट. पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम. हम कहते हैं कि वो एपेक्स हैं, बट फिर भी उससे भी ऊपर एक है. सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर्स. इफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर वायलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, राइट. अगर पार्लियामेंट, लॉज ऑफ द पार्लियामेंट अगर कोई वायलेट करे
या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वायलेट होते हैं पार्लियामेंट, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसे हम चैलेंज कर सकते हैं. दैट लॉ कैन बी मेड 0-0, जैसे तुम्हारे मैथ्स में होता है नल सेट दैट इज एम्प्टी सेट, राइट, 0-0 करना. तो वंस अगेन पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर्स. हमने आगे बताया था पार्लियामेंट इज एपेक्स, लेकिन दी मोस्ट सुप्रीम अगर हम कहेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अब पार्लियामेंट के जो लिमिटेड पावर्स हैं, तो क्या होगा कि अगर कोई लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन ये लॉ ऐसा बना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए सम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लॉ बना दिए, राइट, और ये वायलेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ यहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो फिर हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिस लॉ मेड इन द पार्लियामेंट इज इम्प्रॉपर. तो वो लॉ सुप्रीम कोर्ट में नलिफाई हो जाएगा. इट विल बी कैंसल्ड, राइट, अगर डिस्कशन के बाद पता चला कि लॉ इम्प्रॉपर है. क्लियर? इट इज नॉट दैट तुमने कहा और नलिफाई हो गया. डिस्कशन विल बी कैरिड आउट, मीटिंग्स होंगी, फिर अगर पाया गया कि हाँ ये लॉ ऐसा बना है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है, देन इट विल बी नलिफाइड. देन क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स तो बहुत ज़रूरी है. अब क्वालिफिकेशन मतलब BA, BCom, डॉक्टर, इंजीनियर, नो, यहाँ पे ये सब नहीं देखते. यहाँ पे थोड़े और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके क्वालिफिकेशन के. तो सबसे पहले अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो उस पर्सन को सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. सेकेंड, 25 years ऑफ एज और मोर ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब नॉट अनस्टेबल माइंड नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए. ही शुड बी अ मेंबर ऑफ सेंट्रल और state government, right? Let's see over here. He should be or should not be. Very easy to be qualified as a candidate of Lok Sabha. First of all, he or she should be Indian citizen, 25 years of age or more, should not be of unsound mind or insolvent, and he should not work as an employee. He should not be a member or an employee of central or state government. तो अगर member of लोक सभा के मतलब में होने के पहले अगर वो कहीं पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है, राइट, तो वो पोजीशन उसे छोड़नी है. देन ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ लोक सभा, राइट, एंड शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफ कोर्स. पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 meetings ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने का गैप होगा. जैसे कहीं पे भी अगर जैन में हुआ तो बाद में 6 महीने के बाद दूसरी मीटिंग बुला सकते हैं. वो आई वुड से इट्स कॉल्ड अ सिटिंग इन योर पॉलिटिक्स वर्ड. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑन द काउंसिल ऑफ PM, मतलब PM से सलाह मशवरा करने के बाद प्रेसिडेंट लोकसभा को यू कैन से डिसॉल्व कर सकते हैं. मतलब कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर उसे 2 या 3 साल में ही उसे स्टॉप करवा देना है और फिर से एक नया इलेक्शन बुलवाना है, तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट. अब पार्लियामेंट के मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री can attend meeting, right? Though not a member of Lok Sabha, but member of Rajya Sabha, then he or she can vote only in that house, right? Gujarat state has 26 members in Lok Sabha, and Lok Sabha is always for 5 years. So once again, let's see a bit of it over here. कि ये हमने देखा अभी कि क्वालिफिकेशन क्या है. इंडियन सिटीजन, ही और शी शुड बी 25 years of age or more,
should not be of unsound mind, should not be insolvent, should not be an employee of central or state government, he should not be a proven criminal. तो ये हुई क्वालिफिकेशन. फिर 2 सिटिंग, पार्लियामेंट की 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए. अब प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, जो कहा जाता है कि लोकसभा 5 साल के लिए है, फिर नई इलेक्शन होगी. बट नो, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ड्यू टू सम रीज़न इफ इट इज़ फीजिबल, और ये कंपल्शन बन जाता है कि नो, लोकसभा हैज़ टू बी डिसॉल्व, तो प्रेसिडेंट पीएम के साथ काउंसिल करेंगे, फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. देन a member of any of the house of parliament can attend this proceeding of that house and can vote in the same house, right? member of parliament कोई भी एक हाउस का, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, तो लोकसभा का मेंबर ले लो, he can attend the meeting of that house, he can vote in the same house, but a member of cabinet ministry can attend the meeting of both the houses of the parliament, even if he or she is not a member of Lok Sabha. But if he or she is a member of upper house, that is Rajya Sabha, then he can vote only for that house. State of Gujarat, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के मेंबर को अलाउड है कि वो किसी भी हाउस के मीटिंग में बैठ सकते हैं, दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा. स्टेट ऑफ गुजरात हैज, एज आई टोल्ड यू, 26 मेंबर्स और इन द लोकसभा एट कंट्री लेवल, और ये लोकसभा होगी 5 साल के लिए. बट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व दिस लोकसभा इफ रिक्वायर्ड, बट आफ्टर काउंसिलिंग विद पीएम. इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे अभी चल रहा है, राइट, इनिशियली स्टार्टिंग में जो था लॉकडाउन पीरियड एंड ऑल, दैट वाज इमरजेंसी. लॉकडाउन लाया गया तो तुम रास्ते पे नहीं निकल जाओगे, नहीं, कर्फ्यू है, लेकिन आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई हैव गॉट दिस मैनी 6 राइट्स, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा या हाई कोर्ट में कि क्यों मुझे बाहर नहीं निकलने देते, या वाई देयर इज़ लॉकडाउन पीरियड एंड आई वांट टू स्टार्ट विथ माय बिजनेस, मैं तो अपनी फैक्ट्री खुला रखूंगा या मैं अपनी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूंगी एंड ऑल, नॉट अलाउड. तो ये इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी है. ये द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year. तो अगर 5 साल खत्म होने आ रहे हैं और इमरजेंसी पीरियड में चल रहा है कंट्री में, इफ एट ऑल एग्जाम्पल, तो हम उस लोकसभा को 6 साल के लिए कर सकते हैं. तो 5 साल खत्म हो गए तो अब इलेक्शन नहीं होंगे, इट इज इमरजेंसी टाइम पीरियड, तो 1 साल और बढ़ा देंगे लोकसभा का. इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट. अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लिया तो तुम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. क्लियर? कोरम वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्कर, 1 मार्कर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट. कोरम मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट हाउसेस, मतलब लोकसभा राज्यसभा, प्लस वर्किंग, मतलब वो वहाँ पे होने भी चाहिए, दे आर इन वर्किंग कंडीशन, आउट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. मिनिमम कोरम किसको हम कहेंगे? लोकसभा में 1/10 आउट ऑफ 545, मतलब 55 को प्रेजेंट होना है. एंड मिनिमम राज्यसभा में 25 शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग. लेट्स सी, कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, राइट, उसको हम कहेंगे कोरम. या तुम ऐसे कह सकते हो, quorum is the number of members present and working in the house out of the total number of members of that house. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर है लोकसभा के 545, तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग में लोकसभा को कंटिन्यू करने. से अ पर्टिकुलर डे मेनी पीपल हैव नॉट अटेंडेड दैट पर्टिकुलर वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम टू कंटिन्यू द वर्किंग? 55, और राज्यसभा में 25 प्रेजेंट होने चाहिए. एंड राज्यसभा, एज आई सेड, इज अपर हाउस, 250 मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स आर ओवर हियर. लोकसभा में कौन होंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव. राज्यसभा में कौन बैठेंगे? हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव. तो 250 में से 238 इलेक्ट होते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट. अब ये नॉमिनेट किसे करेंगे? प्रेसिडेंट कौन किसे पिकअप करेंगे? अपने और से
जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, या लाइक आई वुड से द वन हु हैज़ ब्रॉट द नेम एंड फेम ऑफ द कंट्री एट द टॉप, लाइक आई वुड से बहुत सारे हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, देन जया बच्चन, हेमा मालिनी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कंट्री का नाम रोशन किया हो. वन पर्सन कैनॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. सो लेट्स सी. Rajya Sabha is the upper house of the parliament. It is the representative house of all the states and UT of India. In all 250 members. Members of Rajya Sabha are indirectly elected by the members of Assembly of the state and UT through a method of equal representation. In all 238 members of Rajya Sabha are elected. 12 are nominated by India's president. These nominated people कौन होंगे? Who have special knowledge or practical experience with respect to literature, science, arts, culture, sports and social service. No person can be the member of both the houses at the same time. So, for today, we stop over here and we start once again from Lok Sabha, Rajya Sabha. तब तक एक बार रिवाइज भी कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा. And keep on revising the videos whenever you are free, the previous chapters, keep on repeating. I can only request, I can't force you, yes, it's a hearty request. Keep on repeating the chapters. Learn the question answers first, textual. वो learn करके पहले अपने homework notebook में लिखा करो. As I told you in the beginning, every time after each and every chapter I'm not going to tell you is a homework. हाँ, ग्रामर की वर्कशीट हर बार जब भी होगा तो हम भेजते रहेंगे. that will be your homework. प्लीज़ उसे कलेक्ट करो. as soon as the classes will reopen we are going to collect your homework. तो be on your toes. अभी भी अगर नहीं किया है you have enough time. आगे के सारे एसएस के चैप्टर्स जितने हुए हैं, इंग्लिश के जितने हुए हैं, इंग्लिश और एसएस की अलग नोटबुक बना के उसके क्वेश्चन आंसर्स टेक्सचुअल लर्न करके लिख रहे हैं वन टाइम. बाकी के जो एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स, मैथ द कॉलम, लॉट मेनी थिंग्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स गिव रीजन हैं, वो नोट्स में है. दैट यू नीड नॉट राइट बट यू हैव टू लर्न इट कंपल्सरी फॉर योर नॉट ओनली ट्यूशन एग्जाम बट ऑल्सो स्कूल एग्जाम. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. So work hard, take care. Thank you so much. Thank you once again.